how many revisions you did before the exams? How do you kept motivating yourself during the exam preparation? कितनों की इच्छा है कि सीए से ही शादी करोगे? So let's start with an introduction, a very quick, short introduction. Good evening, sir. I am Shashank Pandey from Raigad, Chhattisgarh. I secured All India rank 15 CA final November 21 attempt. So yeah, my name is Saurav. I have secured an All India rank 27th, and I am from Kuchaman City, Rajasthan. I currently work at a fund, mezzanine fund, based out of Mumbai. So my name is Gaurav Singhal. I reside in Gurgaon. I did my articleship from Deloitte. I got All India rank 49. First of all, congratulations everyone, and congratulations to you, sir. Your students did a tremendous job everywhere. And so I bagged All India rank 32 in CA Finals December 2021. My name is Kamlesh and I got AIR 33, and basically I'm from Ahmedabad. Congratulations to everyone. Thank you, sir, for your guidance and your conceptual teaching that helped me got AIR 10 in December 21. So my name is Akhil Goyal and I am from Panipat, Haryana. So I secured All India rank 28 in this attempt. I started my commerce journey from FAST only. 11, 12, then circuit guidance. I started my chartered accountancy. CPT circuit through करा है. Inter also from. I'm basically from Indore, तो FAST से करा है. And then finals, I got an AIR 22. So congratulations everyone. I have scored AIR with sir's guidance, and this was my second attempt in CA finals. So पहला सवाल आप सभी लोगों के लिए. Did you guys ever thought of getting rank and joining this Shark Talk with SJ? कभी भी लाइफ में आपने सोचा था? Your options are never. And second option is I always dreamt all my life for this. B. B, sir. Always. डालो. चलो तुमको भी दिखेगा क्या पे लोग. वाह. इनफैक्ट सभी बच्चे जो यहाँ पे हैं, एक को छोड़ के जो मुझे दिख रहा है कोई एक है यहाँ पे, इसके अलावा वो शायद गलत प्रेस हो गया होगा. मैं प्रेज्यूम कर लेता हूँ. हाँ सर, गलत प्रेस हो गया. चलो, इज्जत रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर आपका. सभी चलो, now we are having the next question. This one goes to the future entrepreneurs, CFOs, CEOs, startup kings of the community. And the question is, after becoming chartered accountant, now what? Further studies, practice, job, wait and watch. Immediate पूछ रहे हो ना? दो तीन ऑप्शन का है क्या? Sorry? दो तीन ऑप्शन कर सकते हैं क्या? सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? Exactly. लाइफ में देखो, एक ही समय पर एक ही के साथ रहने का, फिर वो डिग्री. अरे ये एडवाइस बहुत काम आई है सर. कौन बोला? सर पंकज. बढ़िया. चलो, अभी मैंने दूसरे लोग क्या डाल रहे हैं मैंने वो दिखा दिया है, so that we can get some independent opinion on this. And I'm still waiting. So I've got 5 votes and I'll be expecting 11 votes. Further studies, practice, job, wait and watch, multiple business or startup going to Startup. Cool. Let me show you the results now. So we've got 9 votes. Okay, there should have been 10. That's okay. And 7 of you say that you're going to get into jobs. So 70% job. एक practice में कौन जाने वाला है? Sir. Okay, Prakhar is going to get into practice, and Prakhar in that sense is very blessed because his father has done a lot of hard work ready for him. And nevertheless, I'm sure कि वो उसको multiple times exponentially grow करेंगे. But then yes, that's a good thing to do. Watch कौन है? Okay, क्यों गौरव उसका clear नहीं हुआ क्या? अभी नहीं हुआ है. अभी ये पढ़ाएगा उसको, फिर वो बनेगी, उसके बाद ये डिसाइड करेगा. ऐसा तो जॉब का सोचा रहते हैं. वो जस्ट ओपन मैंने अप्लाई कर दिया था. तो आई हैव प्लान टू गेट इनटू जॉब ओनली. ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ यू प्लान ऑफ जॉब. ओके, वंडरफुल. तो तुम्हारे कुछ सवाल हो जॉब से रिलेटेड, यू कैन पोस्ट मी अप लेटर, ड्यूरिंग दिस सेशन. लेट्स हैव द नेक्स्ट वन. So now let me tell you one of these questions.
This is something which is really important and it is meaningful. जो क्वेश्चंस अब हम पूछने वाले हैं इसके बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ सम कंक्लूजन व्हिच विल बी मोर इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस एंड द जनरेशंस हु आर नाउ डूइंग सीए जनरेशन और एस्पिरेंट्स they will basically draw some inferences out of this. तो उनके कई सारे दिमाग के फंडे हैं. So just be honest in terms of your answer. I'm just sharing the next question with you. When you first pick your mobile during the day, apart from snoozing the alarm in case if you put an alarm on it, as soon as you get up, mobile उठा के एक बार देखो 9 बजे तक नहीं लगाते हो या 10 के बाद ही लगा रहे हो. And I'm actually kind of myself pretty inclined to see the answer to this. And let's be honest, like मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिख रहे हैं किसने क्या आंसर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंस एज वी कॉल इट. सर मेरा शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग नहीं है सर. अच्छा. इतने बजे तो मैं सोने जाता हूँ सर. चलिए मतलब ये ऐसा बोलते हैं ना अपन कंट्रोल्स बनाने में ह्यूमन जजमेंट एरर हो गई हमारी कि हम सोच ही नहीं पाए कि तुम एएम को पीएम सोच लेना चलेगा. Chalo, okay. So let's see. I'll show the answers to everybody. As soon as we get up, that is the normal tendency. Most of us do. Even I do that. And there are two people who say that not before getting ready. ये कौन है दो? मैं एकदम से जैसे उठते से फोन नहीं हाथ में लेता हूँ. Okay. But तुम कैसे रेजिस्ट करते हो? तुमको उठे से ऐसी फीलिंग नहीं आती कि यार दुनिया बदल तो नहीं गई? नहीं है. कभी कभी लगता है कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है नहीं आया है वो देख लो, पर कभी कभी ऐसा, नॉट एवरी डे. मुझे तो लगा है सुबह उठने के बाद ऐसे अपने को चार्ज नहीं चल रहे हैं पर एक फील आती है कि एक बार तो देख लो. किसी ने कुछ कमेंट तो नहीं लिख दिया बोले सर ये नहीं आया अभी तक, किताब नहीं आई, अमेंडमेंट कब दोगे? ओके, नेवरदलेस दैट्स गुड. आफ्टर 10 किसने डाला है? ओके, तो पंकज बिकॉज़ यू गेट अप लेट अच्छा है. सर मैंने मेरे टाइम में 4 घंटे ऐड कर दिया उसके बाद. चलो बढ़िया. तो व्हाट इज योर शेड्यूल इन फैक्ट इफ आई जस्ट जनरली आस्क यू नॉर्मल? सर रात भर तो पूरा पढ़ता हूँ मैं, मतलब 12 से लेके 6-7 तक तो पढ़ते रहता हूँ मैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो काफी ज्यादा शोर रहता है दिन भर. तो दिन में पढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता, तो रात में ही पढ़ सकता हूँ, ऑप्शन नहीं है कुछ. अच्छा, गुड यार. मतलब बट आई मीन दैट्स अ गुड वर्क अराउंड. इन फैक्ट इट इज डिफिकल्ट वन. आई थिंक मेजॉरिटी लोग तो दिन में पढ़ते होंगे. हाउ एनीबडी एल्स हु स्टडीज ओनली ड्यूरिंग नाइट? गौरव. ओके, एंड दैट इज बाय चॉइस. तुम्हारी बॉडी टाइमिंग वैसी है कि सर एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि दिन में उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था. मतलब सपोज करो आप पढ़ रहे हो तो मन करता है दूसरे रूम में जाके चलो फैमिली से थोड़ी देर बात कर लेते हैं या फिर हो गया पढ़ाई अब रेस्ट कर लो. बट रात में क्या होता है कोई मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं होते, सो यू जस्ट स्टडी. ये वो लड़का जिसने हमने घर वालों को डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोला है, ध्यान रखेंगे घर वालों, क्यों रहेंगे नहीं. बढ़िया. दिन में भी होती है ऐसे पढ़ाई सब मतलब दोस्त के लिए कॉल वगैरह सब चीजें. नहीं ठीक बात है. मतलब आई वाज जस्ट किडिंग. But this is something which is meaningful, Pankaj, ki you have limitations and you have to work around with that. And it's a real example ki working around. दिन में भी पढ़ लेते थे, दिन में भी पढ़ लेता था, बट दिन में इतनी नहीं हो पाती जितनी रात में हो पाती है. तो करेक्ट, शेड्यूल चेंज करना पड़ता है इसमें रात में एंड मेक सेंस. जल्दी याद होता है चीज. आई एम इम्प्रेस्ड. यस. चलिए दोस्तों, अगला सवाल. ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन व्हाट टाइम डू यू वेक अप? बिफोर द अलार्म सेट्स ऑन, और जब अलार्म बजता है तभी, या स्नूज करते हो एक आध बार, या रोज की अलग अलग कहानी रहती है? आज उड़ गए एक अलार्म में, एक बार नहीं उठे. हाँ, रोज की अलग अलग कहानी, एवरीडे. इन सवालों से क्या है, मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि रैंकर आम इंसानों से कितना मिलता जुलता है और कितना अलग है. चलिए, वंडरफुल. तो लेट्स सी द आंसर्स नाउ. मैं सबको दिखा देता हूँ. बिफोर द अलार्म देयर इज वन वोट. कौन है ये? ओके, यथार्थ. सो टेंशन से सो मतलब वैसे देखा जाए तो टेंशन से भी उठ जाते हैं. कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज बार बार कर रहे होते तो आपके स्केड्यूल बन जाता है वो, तो सबकॉन्शियसली मतलब आपके दिमाग में ही अलार्म सेट हो जाता है. कई बार होता है कि मैं अलार्म के 2-4 मिनट पहले उठ जाता हूँ एंड देन देखता हूँ अरे 2 मिनट है, तो वापस लेट जाता हूँ. नींद नहीं आती बट ठीक है, लेट जाता हूँ कि अब जब तक अलार्म नहीं बजेगा उठूंगा नहीं, बेड से नहीं उठूंगा, बट ठीक है बेड पे पड़ा हुआ हूँ. बिकॉज विंटर्स भी थे तो ठंड में वैसे ही उठना, ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाना, निकलना अपने आप में ही वैसा हो जाता था. बात तो ठीक है. मतलब 5 minutes after you snooze the alarm, सबसे majority answers आए every time it was different, and that's
most of you been very honest. Thank you. And चलिए अगला लेते हैं. What do you like to do in your leisure time? I mean, पहला ये क्या होता है? अच्छा, ये सारे सवाल मेरे आखिरी के 4-5 महीने की एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान से रिलेटेड है. You know, so one, ये क्या होता है? रीडिंग नॉवेल्स, म्यूजिक, सर्फिंग मूवीज, टॉकिंग टू फ्रेंड्स और फैमिली, और स्पोर्ट्स. तो ये वाला सवाल स्पेसिफिकली आप मे बी लास्ट 6 महीने, साल भर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हो. जनरली, नॉट जस्ट बिफोर द एग्जाम्स. यू कैन अकॉर्डिंगली पुट अ वोट देयर. तो म्यूजिक तो मुझे मालूम है कि एक तो बोलने वाला है, तो आई होप म्यूजिक उसी ने सिलेक्ट किया होगा. इनफैक्ट म्यूजिक ऑप्शन नॉर्मली उनको पहले बोल रहे थे गाने सुनना, फिर मैंने बोला यहाँ पे बजाने वाले भी हैं, तो वी शुड मॉडिफाई दैट. Sir, you would be disappointed, sir. मेरा मेजर लेजर टाइम से सर्फिंग में गया है. क्या बात कर रहे हो? सही में सर, मतलब इनफैक्ट वायलिन वाज वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग दैट टाइम. Oh my God, you used to get too hooked to it, so हाँ सर, that's वही why स्टार्ट किया सर, इट्स लाइक 3 hours 4 hours तो ऐसे ही निकल जाते हैं. Okay, wonderful. चलिए, तो let me show you the मेरा answer. ऑप्शन ही नहीं है सर. तुम्हारा क्या था? सर मैं तो सोता हूँ सर. क्योंकि दिन में सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता सर फ्री टाइम में. रात में सो नहीं सकते सर. हाँ, आई थिंक मुझे पावर नैप या ऐसा कुछ डालना चाहिए था. ठीक है, रीडिंग नॉवेल्स गलत डाल दिया, क्योंकि सीए का बच्चा नॉवेल क्या होती है, इतनी किताबें कम है क्या. तो दैट्स यू नो रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ द आंसर. बट ठीक है. सो म्यूजिक, समवन हु सेड म्यूजिक, सो दैट वाज लिसनिंग म्यूजिक. I selected it. Music. Okay. Then surfing, movies, talking to friends and family, and sports. तो friends तुम्हारे सीए वाले ही होते हैं या नॉन सीए होते हैं? इस ड्यूरेशन में तो सीए वन. इस ड्यूरेशन में सीए, आई एग्री. डन. तो फ्रस्ट्रेशन समझ पाते हैं वो, जिस मतलब वो फेस से जा रहे होते हैं. तो हाँ, बोले तेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, चल कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही रिलेट करवाते हैं तो सर अच्छा लगता है. उस टाइम पर बातें होती है, तुझे सीए करने में किसने बोला था, बाद में मिलते हैं उससे एक बार. चलो मैं तुमसे एक मेरा सवाल. मानना है कभी दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए सर. सर वो थोड़ा ना फिर ऐसा होता है कि अच्छा उसका इतना हो गया, मेरा इतना नहीं हुआ, मैं पीछे चल रहा हूँ, मेरे से आगे चल रहा है. दोनों चीजें खराब है. अगर आप आगे चल रहे हो, आप पीछे चल रहे हो, दोनों चीजें खराब है सर. ओके. अपना खुद का जो सिस्टम है, जो पढ़ने का तरीका है, उसको फॉलो करना चाहिए. सामने वाला कैसे कर रहा है, कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए उससे. चलो, तो एकदम मुझे रेंचो जैसी फीलिंग होती है पंकज तुमसे बात करके. कितना वो आ रही सर एक्चुअल में सर है ना. हाँ, गुड. Pankaj is an interesting guy. We'll be like in, you know, we'll try to be in more touch. It's very interesting, in fact. Good thoughts you are having. Next is, how do you kept motivating yourself during the exam preparation? In fact, किसी समय पे ऐसा आता है कि, you know, I think सबके साथ होता है, we get into that loop, platform आ जाता है कि यार आगे नहीं बढ़ रहे हैं या गाड़ी रुक गई है कहीं पे. तो ये ऐसा होता था क्या तुम लोगों के साथ? You can tell me, and accordingly फिर क्या करते थे to get out of that loop? I mean, when you have that effectiveness, efficiency loss, कि नहीं हो रही है पढ़ाई, ध्यान नहीं लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कैसे बाहर निकलते थे? या हुआ नहीं कभी ऐसा? Okay. So I'm getting some answer. One, spend some personal time. Second, watched motivating videos, meditating, and others. So majority मोटिवेशन ये रहती थी कि एग्जाम हमेशा में दोबारा नहीं जाना है, 8वीं बार जाना है बस दिन के. दैट्स इट. हाँ, ये बात तो सही है यार. इनफैक्ट मैं भी जब पढ़ता था ना, तो मेरे को बीच में लगता था, ऐसा मेरे साथ हुआ भी था, तो मैंने तो घर वालों को बोला था कि आखिरी बार दे रहा हूँ, इसके बाद कभी सीए की एग्जाम नहीं दूंगा. तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि ठीक है. We've got votes like spend some personal time. Some of you also watched motivating videos, I assume, or others, and then could be other things. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. स्लीप आवर्स क्या थे दोस्तों तुम्हारे? 4 से 5 घंटे, 5 से 6 और 6 घंटे और उससे ज्यादा? दिस इज अ डे बिफोर द एग्जाम और ड्यूरिंग द एग्जाम डेज. तो वो आखिरी के 15-16 दिन जो एनकाउंटर चलता है उस दौरान. आई एम श्योर कि एवरी पेपर इट कुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट देन द अदर्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से वी आर टेकिंग अ मीडियन. मोस्ट ऑफ द पेपर्स आप कितना सोते थे? लेट्स सी द रिजल्ट्स. अगेन आउट ऑफ ऑप्शन सर. सोते ही नहीं थे क्या तुम? सर लिटरली आईआईटी का पेपर 1 घंटा सो के दिया था. ओह. सर इधर तक एवरेज चलता था. आफ्टर एग्जाम डे 8 hours और फिर एग्जाम डे के दिन पे 4 hours, तो ऑन एवरेज फिर वो 6 होता था. अच्छा, मतलब एक दिन पहले लंबी ले लेते थे.
सर हाँ, ये दिक्कत होती थी कि मेरा तो मतलब एफआर से पहले सोने का प्लान था 8 घंटे का, लेकिन वो नींद ही नहीं हुई पूरी। आई ही नहीं, स्ट्रेस में नींद ही नहीं आई। तो वो हर पेपर में सिचुएशन चली कि एफआर की नींद एसएफएम में निकली, एसएफएम की नींद आगे निकल रही है। तो ये चलता ही गया। मतलब एग्ज़ाम के दिन के बाद जो दिन होता था प्रिपरेशन का, उसमें नींद निकलती थी पूरी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले सो नहीं पाते थे। पूरा स्लीपी हेड होके जाते थे नींद में। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि नींद एग्ज़ाम में नींद आती ही नहीं थी। ओके, करेक्ट। एंड सर मेरा तो मतलब मैं कैसा करता था कि जिस दिन एग्जाम दे के आया उस दिन आते ही, क्योंकि अपन आते ही वापस पढ़ नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी जब दे के आए हो आपके दिमाग में वही चल रहा होता है कैसे दिया क्या नहीं दिया। तो मैं तो आते ही सो जाता था एंड मेरे को सिर्फ इतना पता था कि अभी सो जाओ जितना सोना है, 8 घंटा 6 घंटा 8 9 10 घंटा। एंड फिर एक बार उठ गया तो अब जब तक मैं अगला एग्जाम नहीं देता था मैं नहीं सोता था। फिर वो नॉन स्टॉप मतलब 24 आवर्स 30 आवर्स जो भी होता था फिर पढ़ते रहो, क्योंकि उससे दो चीजें होती थी। पहला एग्जाम आती फटाफट 2 सेकंड में नींद आ जाती थी तो आपका दिमाग फ्रेश नहीं हो जाता था। एंड मतलब अच्छा खासा एक साथ एक ब्लॉक में पूरा टाइम मिल जाता था करने का। सर ये मेरे से कभी हो ही नहीं पाया सर। मतलब हाँ, मैं कभी 7-8 घंटा एक साथ सो ही नहीं सकता मैं। तो मैं हमेशा सर 1-2 घंटा सोता था, फिर पढ़ता था, फिर 1-2 घंटा सोता था, फिर पढ़ता था, फिर 1-2 घंटा सोता था, फिर पढ़ता था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड फोन लगा देती होगी ना, बोले पंकज क्या कर रहा है? सर लिटरली यही होता था, मैं तभी उठ पाता था, वरना मैं उठा ही नहीं था। बट यथार्थ यू आर लकी दैट यू आर एबल टू फॉलो द शेड्यूल। ये इतना आसान नहीं है। मतलब ये कुंभकर्ण का लाइट वर्जन हो गया कि 2 दिन का एक दिन सोच के मैंने बट या मतलब अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा है यार। इट्स समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट टू अचीव। सर बट आई क्योंकि वुड कहीं से ना एग्जाम के कहीं पहले 2-3 घंटे अगर आप रखा आई वुड से एग्जाम के पहले तो मेरे लिए तो एटलीस्ट वो 4 आवर्स जो रहते थे उसमें ऑलमोस्ट वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन अभी तक इतना सारा एक साथ वापस से कंज्यूम करा है वो पूरा असिमिलेट होता था एंड देन उसके बाद में वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एग्जाम में निकल पाता था। फॉर मी इट वाज अ डिफरेंट ओपिनियन देन योर्स। ओके, तो तुम आने के बाद व्हाट वाज द शेड्यूल फॉर यू गाइस? एग्जाम से आने के बाद इमीडिएटली व्हाट नेक्स्ट? इमीडिएटली 2 घंटे बाद सर सोने का, फिर मतलब 1 घंटा सोने का। हाँ फिर सीधा उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होते आई मीन जैसे आधा घंटा चिट-चैट। तुम 5:30 6 बजे आए, उसके बाद सो जाते थे तुम? सर मैं 8 बजे पहुंचता था, तो मैं तो गाड़ी से सामान निकालता था आधे घंटे। ओह, तुम्हारा सेंटर आई यूज्ड टू ट्रैवल 2 आवर्स, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 8 घंटे सोऊं, 4 घंटे ही सो पाता था। तो 2 घंटे माय सेंटर इज 2 आवर्स फ्रॉम माय टाउन। मतलब आई रिसाइड एट अ टाउन कॉल्ड कुचामन, और मेरे को किशनगढ़ जाना होता था। अच्छा। तो 2 आवर्स टू एंड फ्रो, मॉर्निंग में आने का, इवनिंग में आने का। अरे बाप रे, ये तो यार टफ काम था। तो हाँ टफ था, बट मेरे को रूम नहीं छोड़ना इसीलिए। मतलब शायद किसी होटल में रुकता तो नहीं जमता वो, इसीलिए। हाँ, वो एक वो रहता है थोड़ा, मतलब आदमी पेन कैलकुलेटर बदलने में भी करता है, तो रूम तो खैर वो है। राइट। ओके, तो तुम ड्यूरिंग स्टडी कर रहे थे मतलब रास्ते में कि? ना नहीं हो पाता था, बहुत ट्रैफिक था। बाप रे। सोचा था नहीं वहां पर कुछ नहीं। लिमिटेशंस तो रहती है यार सबकी, ऐसा नहीं है। मतलब नॉट एवरीबॉडी सेज दैट यू नो एवरीथिंग इज एक जैसा है। मतलब अदर फैक्टर्स डू अफेक्ट। डिस्पाइट दैट तुम लोग करते हो, व्हिच इज लाइक यू नो अचीवेबल। दैट्स अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर डूइंग इट। यू नो पीपल डू हैव लिमिटेशंस टिल दे प्रूव। चलो अगला आ गया दोस्तों। हु मोटिवेटेड यू टू बिकम सीए? सीए में कैसे आए प्रिसाइसली? दिस इज द क्वेश्चन गोइंग बैक। फैमिली, फ्रेंड्स, came to CA by chance? I'm sure कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देंगे, इनफैक्ट आंसर देंगे। और तुमने कभी YouTube पे मेरा वीडियो देखा और बोला नहीं अब तो हम CA ही करेंगे? चलो ये जो आखिरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेगा उसे समझ में आएगा तो कितने झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। Let's see what people have to say. I'll show you the answers for everybody. So majority says family, यानी फैमिली में कोई सीए रहा होगा। That's what I assume. Okay. And so it came by that. And CA came by chance. मुझे लगा ही था कि नेक्स्ट हाईएस्ट यही होना चाहिए। 12वीं के बाद ऐसा होता है ना, कुछ अच्छा कॉमर्स में करने को नहीं होता है तो बोले चलो ये करके देख लेते हैं। एग्जैक्टली सर। मेरे को तो साइंस में भी अच्छा नहीं मिला। सर आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे तो कंप्लीटली बाय चांस था सीए। ओके, तुमको मैथ्स में सर मुझे किसी ने बोला था। हाँ सर बोले। अनिल इसको मैथ्स बड़ा इजी हो गया होगा फाउंडेशन में। हाँ बस मैथ इजी था। आई नो। आप अंकित? अकाउंट सबसे। मुझे तो किसी ने बोला था कि मतलब पैसा ज्यादा मिलता है सीए के अंदर और सस्ता भी है, तो कर लिया सर। बाकी एमबीए लॉ यूनिवर्सिटी में थोड़ा
पैसा ज़्यादा लग रहा था, तो वो नहीं किया, सीए में घुस गए। ओके, एनपीवी पॉजिटिव निकल गई। सॉरी एनपीवी पॉजिटिव थी सर काफी। एनपीवी सीए में तो इनफाइनाइट हो जाएगी तो। मतलब तुमने जो दिया है उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो नेग्लिजिबल हो गई अगर आर्टिकलशिप में थोड़ा बहुत भी मिल गया हो तुमको तो हाँ सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो खैर है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, हाउ मेनी रिविजन्स यू डिड बिफोर द एग्जाम। सो मैं आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एग्जाम प्रिपरेशन वन आफ्टर द अदर बैक टू बैक दे रहा हूँ। नंबर 1, रिविजन्स आपने कितने किए थे? 2, 3, 4 या थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग नंबर ऑफ रिविजन्स प्लान किए थे? अलग अलग मतलब 1 का 3 1 का 4 है तो आप 3 या 4 लिख देना, बट मेजर डिफरेंसेस थे कि भाई 1 2 और 1 4 ऐसा तो बताइएगा। मैंने 2 से कम ऑप्शन रखा नहीं क्योंकि मैंने प्रिज्यूम किया है कि किसी ने 2 से कम तो शायद ही किया हो। किसी ने किया हो तो बताओ। ओके, तो लेट मी शेयर द आंसर्स। 1 set 2, 3 set 3, 1 set 4 and 4 set different for theory and practical. So this is a learning that number of revisions should be different for theory and practicals. कितने थ्योरी के रिविजन्स तुम लोगों ने किए थे जिन लोगों ने डिफरेंट बोला है? सर 5। नो नंबर सर उसमें भी काफी डिपेंड करता था। हाँ पैरेलल Like audit के लिए it was around 10-15 also Right. sometimes. And law के लिए and other comfortable subjects के लिए it was a little bit range of 5 to 7. राइट राइट। अच्छा, मतलब जिसमें there is more to kind of Memorize. वो again अच्छा, okay. number of revisions go up। तो ऑडिट तुम बोल रहे हो 10 से 15? ये हाँ चैप्टर वाइज किया था तो हो गया, मतलब 10 बार तो एक चैप्टर हो ही गया था। Yes sir. आई मीन वो जो स्पेशल ऑडिट अपन बोलते हैं वो वाले टाइप के? हाँ वाले टाइप। Yes. मेरा तो 5 से 6 बार हुआ था सर ऑडिट। मेरे भी अराउंड उतने। ओके, लॉ हुआ था 8-9 बार शायद, क्योंकि वो मैं पहले से पढ़ा रहा था, मतलब हाँ, लॉ law पढ़ना अच्छा मेरा भी लगता था तो 8-9 बार हुआ। फ्री टाइम में पढ़ता रहता था मैं लॉ। अच्छा, गुड। और ये ऑडिट का बात करें तो बताओ, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें थोड़ा डर तो रह ही है बच्चों को क्योंकि यहाँ से थ्योरी है, पेपर भी टफ आता है। तो कैसे तुम लोगों ने ऑडिट की तैयारी करी? पहला क्वेश्चन, जब पहली बार पढ़ते थे तो उस समय याद रखने की कोशिश करते थे या सिर्फ समझ के नोटिंग करके आगे बढ़ते थे? तो कीवर्ड्स हाईलाइट करने की, मतलब मैंने तो ये किया कि ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सर स्टडीज में सर ऑडिट का 3 पर्सपेक्टिव होता था। सबसे पहले रीडिंग इट, एक स्किम कर लिया तो पूरा एक ओवरव्यू आ गया उस चैप्टर का, एंड देन उसमें पूरा जा रहे हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, देन कीवर्ड हाइलाइटिंग एज सौरभ सेड वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही है, एंड देन द नेक्स्ट थिंग उसी टाइम पे कर लेता था व्हाट आई वुड डू इज कि उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस बना लिया। अगर 10-15 पॉइंट्स तो उसको चंक्स में डिवाइड करके जो लॉजिकल सीक्वेंस बनता है आई वुड डिवाइड इट इनटू दैट। वो बन जाता है, द नेक्स्ट रिवीजन वुड टेक वेरी लेस टाइम आफ्टर दैट। एग्जैक्टली। ओके। तो निमोनिक्स जैसे तुमने बताया था प्रकार तुमने यूज नहीं किए थे ऑडिट? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। वो नहीं याद रहता एग्जाम में। कितने में निमोनिक्स यूज किए थे ऑडिट में? लास्ट में तक छोड़ दिए थे, पहले किए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, निमोनिक्स से याद रखा पूरा? बहुत ज्यादा सर। मैंने मतलब तो मेरे किए तो थे पूरे mnemonics मैंने use। नोट्स बना लिए थे कि जिसमें सिर्फ निमोनिक्स से लिखे हुए थे। लास्ट डे पे एग्जाम से पहले वही पढ़ रहा था बस। और वो काम आए? हाँ काम है। ओके। और सर ऑडिट में एक जो मेरे को प्रॉब्लम जो मिली थी, सो बेसिकली मैंने क्यों मतलब मैंने 4 एंड अबव रिविजन्स क्यों लिए, बिकॉज़ बेसिकली मतलब नंबर ऑफ रिविजन्स नहीं, वो नंबर ऑफ राउंड्स थे। तो मैंने क्या करा था, एग्जाम्स के पहले 2 मॉक टेस्ट सीरीज दी थी। तो अब मॉक टेस्ट सीरीज में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल कोई मैं सब्जेक्ट, जैसे मेरी पहली सीरीज थी, हर 8 डे पे मैं एक सब्जेक्ट दे रहा था, तो 6 दिन में उस सब्जेक्ट को करा। फिर जैसे अपन एग्जाम में करे, फिर मॉक टेस्ट सीरीज के एक दिन पहले यानी 7th डे को पूरा सब्जेक्ट वापस करा। फिर 8th डे को 2 बजे मैं टेस्ट दूंगा, तो 8th को मैंने दूसरी बार पूरा सब्जेक्ट वापस करा, सो दैट आपको 1.5 दिन में करने की भी सब्जेक्ट की बार-बार प्रैक्टिस हो जाए। तो इसलिए मेरे नंबर ऑफ रिविजन्स बहुत ज्यादा हो गए। बट अगर नंबर ऑफ राउंड्स बोलूंगा तो मैं 2 बोलूंगा, बिकॉज़ मैंने 2 सीरीज दी और उसमें नंबर ऑफ रिविजन बहुत बार थे, मल्टीपल टाइम्स। ऑडिट में सर जो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज के टाइम एक जो प्रॉब्लम मेरे को आइडेंटिफाई जो मैंने करी थी ना, कि ऑडिट में अब इतनी सारी चीजें हैं जो एक बार अगर अपन याद भी कर लें तो अपन को ये याद नहीं रहता कि अपन ने याद क्या-क्या करा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी याद की क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर्स, या वो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर्स के मेरे पास 3 आंसर है। एक है मेरे पास फॉरेंसिक ऑडिटर्स की क्वालिटी, एक है ऑपरेशनल ऑडिटर्स की, मैनेजमेंट ऑडिटर की। अब एग्जाम में पूछ लिया मैनेजमेंट ऑडिट का, मैं लिख के आगे इंटरनल ऑडिटर का, तो कोई याद करके वो एग्जैक्ट चीज लिखने का भी मतलब नहीं रहेगा। तो मैंने उसके लिए क्या करा था, अपना एक इंडेक्स जैसा बना लिया था जिसमें मैंने सारे हेडिंग्स लिख लिए थे। उस हेडिंग का फर्स्ट जो पॉइंटर है वो लिख लिया था।
ओके तो उससे क्या होता था, मैं सिर्फ उसको पढ़ता था एंड मैं पिक्चर मेमोराइज करता था कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो मेरे को सिर्फ इतना याद आ जाना चाहिए कि वो क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स कौन से पेज पे था, वो क्या था, अंदर क्या था वो तो अपन ने पहले याद कर लेते हैं, बट मेरे को ये क्लिक हो जाए कि वो क्या था, मतलब कौन सी जगह पे मेरे को पहुंचना है, तो मैं उस इंडेक्स पे मल्टीपल टाइम्स वर्क करके कि वहां पे मैं पहुंच पाऊँ। ओके तो वो एक चीज मेरे को लगी थी जो काफी यूजफुल थी, ताकि अपन को आते हुए भी अपन कुछ गलत ना लिख के आ जाए। मैं तो डिप्रेस हो गया था सर ऑडिट से एक्चुअली में। So one thing which really helped me in audit was spaced repetition. तो उसमें what I did was कि जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ना, उसी के सेम डे रात को I was revising it once. फिर उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे I am doing it again and then after 2 days, फिर after 4 days, फिर after 8 days and 16 days. तो इस तरह से कैलेंडर बना लिया था मैंने. Whatever I'm doing today, वो उस तरह से on a revision basis every day it was coming. तो सुबह 3 घंटे was given absolutely for audit and उसका कारण से काफी easy हो गया था audit. उस कारण से वो 10 रिविजन हो पाए थे. Sir, I also studied audit for an entire 5 months, daily 3 hours. Yeah, रोज. Till 30th of November. Yeah. मैंने एक्चुअली 10 to 15% सिलेबस कवर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि जो रेस्ट 80 to 85% है, अगर मैं उसको अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर लूं तो ये स्ट्रेटजी मैंने एक्चुअली सी इंटरमीडिएट में भी लगाई थी, तो ये आई मीन सही रही है। तो ओके मतलब एबीसी में नहीं सर, एक्चुअली जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, और मतलब मुझे लगा कि अगर नहीं भी आता तो मतलब 5 to 6 नंबर का रिस्क है, तो मतलब कैलकुलेटेड रिस्क दिया एक तरीके से। मतलब पूरा छोड़ दिया कि ये टॉपिक है, ये चैप्टर ही हटा दो। सर जैसे कि एक लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर है, या फिर जैसे कि एक ये मैनेजमेंट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, यहाँ से जनरली आते नहीं है, और मतलब मुझे वो मुश्किल लग रहा था। मतलब हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है, याद नहीं होता। तो एक ऐसे 260 ऐसे 315 मुझे लगा कि एक ऐसे के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं है, तो बेटर है अपना सॉरी 240 नॉट 260। ओके सर मेरा मॉडिफाइड एबीसी रहता था सर, मतलब मैं खुद से डिसाइड करता था कि कौन सा टॉपिक आने लायक है, कौन सा आने लायक नहीं है। तो जो आ गया उसे कर लो, पढ़ लो, जो नहीं आया उसे छोड़ना नहीं है, सिर्फ रीड करना था कि एमसीक्यू में काम आ जाए। ओके सर ऑडिट के लिए तो थोड़ी अप्रोच यही रहती थी कि जैसे जो बड़े चैप्टर्स है ना, अगर उसका वेटेज कम है तो मैं सोचता था वो शायद स्किप कर सकता हूँ। अगर छोटे चैप्टर्स हैं उनका वेटेज ज्यादा आ रहा है पास्ट टेंस से, मैं ट्राई करता था कि उनको कवर अप कर लूं। जैसे मैंने टैक्स ऑडिट में छोड़ दिया, मेरे को इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो था नहीं। मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतने में मैं 2-3 छोटे चैप्टर्स कर लूंगा, लाइक एनबीएफसी, मैनेजमेंट ऑडिट। सो मैंने उस पे फोकस किया फिर एट दैट टाइम। ओके पर तुम्हें लगा मतलब ये सही है स्ट्रेटजी? जो चैप्टर मैंने कवर नहीं टैक्स ऑडिट का तो हमारे टाइम में आई थिंक जो क्वेश्चन आया था, मेरा फ्रेंड पूरा करके गया था, उसको भी नहीं आया। मैंने कहा तो बढ़िया हो गया। जो करके जाते हैं उनको हेल्पफुल था सर वो। जो चैप्टर जो टैक्स ऑडिट करके गए थे उनको हेल्पफुल था, मैं करके आया वो क्वेश्चन। मतलब सीधे-सीधे उसमें तो क्लॉज दे रखा था सर उन्होंने, कोई क्वेश्चन ही नहीं था उसके अंदर, मतलब सिंपल था वो एकदम। वो लोगों को टफ लगा था, मतलब कि वो काफी सिंपल था, उसमें सीधे-सीधे सेक्शन कोड कर रखा था, इवन क्लॉज तक दे रखा था उन्होंने। आप कुछ खुद का भी लिख दोगे तो भी नंबर आ जाएंगे। मतलब पढ़ के गया तो कर दिया, वैसा है रही क्या होगा। सर आप बिना पढ़े भी लिख सकते थे उसको तो भी नंबर आ जाते, क्योंकि उन्होंने क्लॉज भी दे दिया था, सेक्शन भी दे दिया था। ओके ठीक है, मतलब देयर इज अ डिवाइडेड थिंग है। एंड सिलेक्टिव स्टडी थोड़ा सा रिस्की अफेयर है, मतलब उसको बहुत केयरफुली पिक करने की जरूरत सर उसमें एक्चुअली मैं क्या करता था, जो बुक के पीछे क्वेश्चन होते हैं एटलीस्ट उतना कवर करता था मैं, अगर मैं पूरा चैप्टर कवर कर सकता हूं तो, क्योंकि वो लेटेस्ट बुक में होता है तो माइट में वहां पे फोकस हुआ चाहिए। कौन से सब्जेक्ट का आईसीआई का स्टडी मटेरियल नहीं देखा था? सर डीटी का नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं खोला सर। डीटी का नहीं देखते, लॉ देखना पड़ता है। लॉ बाकी सब देखना स्टडी में स्टडी में तो मॉड्यूल से ही किया था सर। अच्छा और ऑडिट भी सर स्टडी मटेरियल एसएस के अलावा बाकी सब ऑडिट स्टडी मैथ। हाँ एसएस के अलावा बाकी सब कुछ स्टडी मटेरियल है। मतलब स्टडी मैथ तो सबका देखना पड़ता है। स्पेशल ऑडिट के लिए यूज किया था, बाकी आपके मटेरियल किया जो थ्योरी वाले चैप्टर हो गए वैसे वाले। चलो भैया अब 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और हैं। हैव यू गिवन मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जाम्स और कितने दिए? नंबर 1। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट टाइम फॉर अ स्टूडेंट टू कंप्लीट हिज और क्लासेस बिफोर द एग्जाम्स?
एंड आई हैव अनदर वन व्हिच इज एग्जाम से 2 महीने पहले क्या तुमने यूट्यूब खोला और रिवीजन या अमेंडमेंट के वीडियोस वहां से देखे क्या? प्लस सोशल मीडिया तुम लोगों ने एग्जाम से 2 महीने पहले यूज किया क्या? So these 4 questions relating to your preparation. Let's see, how people say. Yes, sir. So number 1 is कितने mock test दिए थे? And the answer here are 4 लोगों ने बोला एक भी नहीं. एक ने कहा है कुछ के लिए कुछ दिए थे पर ऐसा नहीं है सबके लिए दिया था. एक ने कहा है सारे सब्जेक्ट के एक दिए थे और 3 लोगों ने कहा है एक से ज्यादा mock test दिए थे सारे सब्जेक्ट्स के. जितने लोगों ने एक भी mock test नहीं दिया वो लोग बताओ तुम लोगों को कुछ ऐसी फीलिंग आई कि गलत किया है? नहीं दिया सर, मैंने, नहीं दिया कुछ भी। सर मॉक टेस्ट नहीं देना कहीं ना कहीं रिस्की अफेयर हो जाता है बिकॉज फाइनली इट्स लाइक यूर डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन यू हैव डन. हो सकता है कि अगर आपने प्रिपरेशन अंडर प्रिपेयर करा एंड यू आर ओवर कॉन्फिडेंट तो वो आपको सीधा एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आए. एंड अगर आपने थोड़ा सा आपको अंडर प्रिपेयर्ड लग रहा है तो कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है इन एग्जाम टाइम. बट इफ इट इज नॉट देयर देन आई डोंट थिंक सो मॉक टेस्ट का उतना हाँ, उतना relevance टाइमिंग्स उतना रेलेवेंस रहेगा. बट सर इन स्पेसिफिक फाइनल्स में इन पर्टिकुलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हो जाता है क्योंकि फाइनल्स आप 3 साल तक आप पढ़ाई से दूर रहते हो एंड आपका ऑफिस में क्योंकि सारा काम लैपटॉप पे होता है, आपका लिखने की आदत, पेन पकड़ना, 3 घंटे नॉन स्टॉप लिखना, ये सारी चीजों से आप काफी दूर आ जाती है 3 साल. तो वापस उस फ्लो में आना आई गेस मॉक टेस्ट उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी जिन्होंने होगा. नहीं दिया उनको पहले पेपर में दिक्कत आई स्पीड की कवर पूरा करने में? सर जितना आता था उतना तो हो गया। जब टाइमिंग के लिए खुद अपने घर पे लिख के देखा था एफआर का, कोस्टिंग का एंड डीटी का कि ये टाइम पे कंप्लीट हो रहे नहीं होने पेपर, एंड देन बस इस ये किया था मैंने, मॉक टेस्ट बाकी कोई किया. सर मैंने 3 सीरीज खरीदी फिर मैंने छोड़ दी. ये ऐसे कि किसी की सीरीज देनी नहीं चाहिए. आईसीआई की लिखो वही बहुत सही है सर, क्योंकि 3 सीरीज लिखी है मैंने और समझ में आया कि इनका जो एवेल्यूएशन है वो आईसीआई से बिल्कुल अलग होता है. ये आपको रटा रटा के थका देंगे, फिर भी नंबर नहीं मिलेंगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, सेंस नहीं बनता. आईसीआई के मॉक टेस्ट लिखो तो मालूम पड़ जाएगा. इसलिए मैंने सर वो फ्यू बट नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट मेरा ही है सर. सर मैंने एफआर पावर बैच में जो था वो मॉक टेस्ट दिए थे एफआर के लिए, क्योंकि एफआर तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था तो बस. ओके. और एफआर पावर संजीवनी बूटी था सर. थैंक यू. पावर कितने लोगों ने अटेंड की थी? शायद मैंने ही किया होगा सर. 2. यश. Others were reasonably confident यार इसे. Not bad. Okay. चलो नेक्स्ट. तुम 3 मॉक टेस्ट दिए थे पंकज, सीरीज जो ली थी तो उसमें क्या होता था, प्रॉपर पेपर और वो लेवल नहीं होता था? सर उनका क्या होता था, पास्ट ईयर के जितने पेपर्स है ना उनके क्वेश्चन उठा के वो डाल देते थे उसके अंदर. अब वो तो आपने पढ़े हुए हैं, अब वो तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, जब एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? ओके. तो सेंस नहीं बनता. कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं सर जिनका आप कुछ भी कर लो आपको वहाँ पे नया ही मिलना है. जैसे ऑडिट है, आप कितना ही देख लो वो कुछ दूसरा ही मिलेगा. आप जितना आप ऑडिट में प्रिपरेशन क्वेश्चंस की बेसिस पे ही होती है सर. कोई भी पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ के जाता, क्वेश्चन देख के प्रिपरेशन होती है. तो वो वही क्वेश्चन उठा के दे देंगे तो मैं तो 90 भी ले आऊंगा, क्या फर्क पड़ता है उससे. लेकिन एग्जाम में तो कुछ नया ही मिलेगा ना सर. इसलिए ऑडिट का तो मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिखा. बाकी सब्जेक्ट के खुद से लिख के देखें दिसंबर के लिए. मेरा जुलाई में ऑप्ट आउट था सर. ओके, ठीक बात है. चलो जी, अगला कितने एग्जाम से कितने समय पहले कंप्लीट सारी क्लासेस पूरी हो जाना चाहिए? मेजॉरिटी सेज मोर देन 6 मंथ्स. आई थिंक वो आइडियल सिचुएशन में हो जाए तो सबसे अच्छा है. तो नथिंग मच देयर. ये मैं आंसर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ. सबने क्या बोला है. नेक्स्ट, यूट्यूब के वीडियोस आखिरी 2 महीनों में देखे. 2 लोगों ने मना किया है, 7 लोगों ने बोला है कि हाँ अमेंडमेंट्स और रिवीजन के लिए देखे. जिन्होंने मना किया है उनके क्या थॉट्स थे, रीजन? इनफैक्ट तुम्हें कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ अमेंडमेंट छूट जाएगा? शशांक सर मतलब मुझे तो हेलो, हाँ सुनो, बोलो. सर मुझे स्पेसिफिकली अगर खुद से ही पढ़ो तो ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है. मैं इनफैक्ट आईसीआई की वेबसाइट से अमेंडमेंट डाउनलोड कर लेता था, किसी टीचर की नहीं लेता था और लॉ वगैरह की खुद ही पढ़ता था. सर ये सही है सर. मतलब मैंने भी कुछ सब्जेक्ट के देखे हैं, कुछ सब्जेक्ट के बिल्कुल ही अवॉइड करता था मैं. जैसे लॉ है या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें अवॉइड करना चाहिए. डीटी के फिर भी देख लिए, डीटी आईडीटी के, लेकिन लॉ के तो स्पेसिफिकली आई वुड से कि अवॉइड ही करने चाहिए अमेंडमेंट्स. बिकॉज टीचर सर ऊपर से बता देते हैं कि अच्छा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, जबकि काफी अमेंडमेंट है. अगर आप अंदर जाके घुस के देखोगे तो काफी अमेंडमेंट है. वो ऊपर से देखकर रह देते हैं. अभी जैसे फकरा चैप्टर था उसके अंदर रिन्यूअल में इतना छोटा अमेंडमेंट था, आप उसको ऊपर से पकड़ भी नहीं पाओगे. काफी छोटा, काफी मेजर अमेंडमेंट था वो. लेकिन अगर वो एग्जाम में आता तो मोस्टली बच्चे गलत कराते क्योंकि वो काफी सिमिलर था. बट पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा काफी चेंज हो चुका है.
ओके तो वो टीचर्स बताते ही नहीं है। मैंने देखा था अमेंडमेंट वीडियो जस्ट टू सी कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, बट फिर समझ मैंने ज़्यादा ही कवर किया इनसे। ओके और जिन लोगों ने देखा, क्यों देखा, एज इन सम थॉट्स? सर आई गेस ये लोग आपका काम आसान कर देते हैं। मतलब जैसे अगर ये लोग जो बोल रहे हैं कि अपन सीधा आरटीपी वगैरह डाउनलोड करके उससे अमेंडमेंट्स देख लें। अब अगर सपोज लॉ की आरटीपी ले लो या ऑडिट या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी सब्जेक्ट की आरटीपी बहुत ज़्यादा पेजेस की होती है। जैसे लॉ की इटसेल्फ अपने 60-65 पेजेस की थी क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन कोड में बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। तो उन चीज़ों को वो लोग जो मतलब जो भी प्रोफेसर का आप रेफर करो वो 10 से 15 पेजेस में उसको समराइज़ कर देते थे। अब जैसे पंकज वगैरह बोल रहे हैं तो सर आई गेस उसके लिए मतलब अपन 6 महीने मतलब स्टडी लीव स्टार्ट होने के पहले अपने सीनियर से पूछ के खुद रिसर्च वगैरह करके वी आई गेस वी शुड डिसाइड कि हमें किस पे ट्रस्ट करना है। लाइक आपको ऑलरेडी डिसाइड हो जाना चाहिए कि ठीक है ये ट्रस्टवर्दी है जो प्रॉपर्ली चीजों से करते हैं एंड आपको वो एक पकड़ना चाहिए। अब होगा अगर मैं लॉ के अगर सपोज 3 प्रोफेसर्स के अमेंडमेंट्स के नोट उठाऊं, इसके ये 4 वीडियोस देखूं, 4 अलग-अलग लोगों के देखूं, तो हर कोई अपने-अपने हिसाब से अलग चीजें बताएगा। तो ये चीज अगर अपन पहले से डिसाइड कर ले कि ठीक है मेरे को इन प्रोफेसर्स के रेफर करने हैं, मैं इन्हीं का करूंगा एंड मैं आगे उन पे ट्रस्ट करूंगा ब्लाइंडली, तो आई गेस आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉक टेस्ट में भी सिमिलरली आप अपने सीनियर्स से फीडबैक ले सकते हो कि किसका एक्सपीरियंस कैसा था एंड उसके बेसिस पे अगर अपन सही सीरीज ले ले लाइक जो लोग अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं, जिनके पेपर्स एज पर आईसीआई चेकिंग एज पर आईसीआई है, तो आई गेस वो एक्सपीरियंस भी जो आपके बुरे एक्सपीरियंसेस है वो कम हो जाएंगे। Okay. Anybody else in terms of taking these videos? सर मेजरली टाइम बच जाता है। सर डीटी में तो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है, मतलब पता चल जाता है सब कुछ। बट लॉ में स्पेसिफिकली आई वुड नॉट रेफर दैट। ठीक है, मतलब यू शुड सी बट विद कंडीशंस अप्लाई कि खुद का एक बार ऑडिट कर लो, क्रॉस और चेक। सर खुद से पढ़ा होता है तो जल्दी याद भी हो जाता है वो। हाँ, मतलब आइडिया ये है कि एक बार आप पहले आइडेंटिफाई कर लो मैंने कि तो सर उनके देख लो और फिर एक बार खुद क्रॉस कर लो, ब्लाइंडली उस पर रिलाई मत करो। तो मैंने तो सर आईबीसी पूरा पढ़ा ही था। ओके, मतलब थोड़े अमेंडमेंट होते हैं तो खुद कर लो, थोड़े अमेंडमेंट्स होते हैं तो खुद कर लो, उसमें टाइम बचता है। अगर ज्यादा होते हैं तो बेटर है कि एफिशिएंसी के लिए आप एक वीडियो देख लो। ठीक बात है, सही। मेरा थोड़ा ऐसा ओपिनियन है कि हमारा टाइम गैप बहुत ज्यादा हो जाता है जब हमने इनिशियल क्लासेस ली होती है ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। तो जब एग्जाम जब स्टार्ट होती है तो एक रहता है कि रिवीजन वीडियो से थोड़ा सा याद आने लग जाता है कि बहुत अगर 1-2 साल पहले क्लासेस लिए तो एक ग्रिप बन जाती है कि एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। आई थिंक एक जो इनिशियल फर्स्ट रिवीजन होती है आई थिंक उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है रिवीजन वीडियो। बाद में तो फिर उसके बाद अपने आप ही हम प्रेफर करते हैं कि जो हमने लिखा है मार्किंग की है तो वो ज्यादा सूट करता है। बट एक फर्स्ट रिवीजन में बैलेंस करना बहुत हेल्पफुल रहती है रिवीजन वीडियो। अग्रीड, वार्म अप टोटली। सही बात है, वो एक बार कोई साथ में सुना दिया पूरा वापस से, फिर अपन ने पढ़ा तो एक लगता है कि सर हाँ हमने भी कुछ छोड़ा नहीं है भाई, ये टीचर एक्सपीरियंस है इन्होंने पढ़ा दिए तो ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और अंडरस्टैंडिंग गैप भी कुछ है तो वो फिल हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग गैप भी सर कई बार मैंने कुछ इंटरप्रेट किया बट एक्चुअली वो कुछ और था, तो वो भी 1-2 जगह मिली ऐसे डिफरेंसेस, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। सर स्टार्टिंग में तो मैंने भी यूज़ किया बट वो क्वेश्चन शायद लास्ट 2 मंथ्स था तो मैंने अकॉर्डिंग बोला कि लास्ट 2 मंथ्स में तो बिल्कुल नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए यस, बाकियों के लिए नहीं। ठीक है, परफेक्ट। कमलेश कहाँ चले गया भाई? डू यू प्रेफर यूजिंग सोशल मीडिया ड्यूरिंग एग्जाम? वेरी डिवाइडेड ओपिनियन। 3 ने बोला है समटाइम्स, 2 ने बोला है ब्रेक में, और 4 ने एकदम वैराग्य दिखाते हुए बोला है कि हमने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था और सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर रहे थे। ये जो 4 लोग हैं, तुमने क्या सोशल मीडिया के सारे मतलब नेट बंद कर दिया था मोबाइल में, सैमसंग गुरु खोल दिया था, ऐसा कुछ कर दिया? मतलब रिचार्ज करवाना बंद कर दिया था। सर वो एक फोकस मोड होता है मेरे फ़ोन में कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि कितना टाइम मैंने कौन-सा एप्लीकेशन यूज़ किया है। तो उसपे क्लियर बैरियर था कि इस सब्जेक्ट को इस एप्लीकेशन को 4 मिनट से ज़्यादा खोलना ही नहीं है मुझे। 4 मिनट के ऊपर अपने आप शट डाउन हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा कोई ऐप मतलब मेरे फोन में सर फ़ोन में zen तो है। मोड है तो यू कैन पुट इट ऑन zen मोड फॉर अराउंड 10-12 आवर्स। हाँ, मतलब Zen मैं mode। खुद का ट्रैक उसी से करता था कि मैंने कितने आवर्स स्टडी किया है, द नंबर ऑफ आवर्स आई वाज ऑन zen मोड। 1 प्लस में ही फीचर होता है, तो जिस दिन 15-16 हो जाता था आई वाज क्वाइट हैप्पी दोस डेज। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया। ये कितनी तुम लोगों ने कुछ-कुछ ऐप्स यूज़ करी है? मुझे प्रखर ने तो कुछ बताई, ही टोल्ड मी अबाउट सम फॉरेस्ट ऐप। फोकस टू डू सर, फोकस टू डू एंड फॉरेस्ट। करेक्ट। और तुम लोगों ने कोई ऐसी ऐप यूज़ करी जो तुमको काम आई, मतलब यूज़फुल है, एज़ इन स्टूडेंट्स को मदद कर सके? एक प्रोडक्टिविटी करके कोई ऐप था जो पोमोडोरो टेक्निक हेल्पफुल था काफी। अच्छा, क्या? जो एक घंटा पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक, 1 घंटा पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक, उसमें काफी हेल्पफुल था।
Okay. जिस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो मैं वो यूज कर लिया करता था ताकि ट्रैक पे आ जाओ ऐसा। अच्छा, anybody else? सर फोकस मोड। तो बाकी फोन में एक बहुत अच्छी एक ऑप्शन होती है एयरप्लेन मोड की, उसमें डाल दो सारी प्रॉब्लम्स आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। मतलब बहुत आसानी से हट सकती है दर्द। हाँ, दिक्कत वही है। वो तो क्या है, जोश जिस दिन बहुत रहता है वो लेट डाल दिया, फिर उसके सर बाद वो तो हमेशा रहता था फोकस मोड में, मतलब फोकस मोड के अलावा आई यूज्ड टू यूज फोकस मोड, मतलब एयरप्लेन के अलावा आई यूज्ड टू यूज फोकस मोड कि ठीक है कभी ओपन किया भी मैंने फोन की, ठीक है कुछ कॉल आ गया तो बात करनी किसी से, मतलब किससे बात करनी समझ गए आप, वो ठीक है वो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, उस पे भी 15-20 मिनट का कैप होना चाहिए सर। नहीं, आई एग्री, करेक्ट। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के लिए यू आर लीस्ट बॉदर्ड, मतलब तुम कंफर्टेबल थे सबसे ज्यादा अमंग्स द ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट इलेक्टिव, एफआर, एसएफएम, ऑडिट, लॉ, एससीएमपी, डीटी, आईडीटी? आई होप अगर रैंकिंग ले सकता मैं, पर वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट? आई मीन इजी टेंशन आई गेस एफआर सर, रीजन बीइंग कि एफआर की पहले आप 3-4 दिन दे सकते हो, आपको जितना टाइम देना है दे सकते हो। सो आई गेस एफआर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे कि यू नो कुछ चीजें छोड़ भी दी है एंड मोमेंट के लिए, तो ठीक है अपने पास 3 दिन है, अपन संभाल लेंगे उस टाइम। बाकी चीजों के लिए 1.5 दिन है तो यू नो यू कैन नॉट टेक रिस्क। और फिर टीचर का भी फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं। यस सर, पड़ता सर, पड़ता फर्क तो पड़ता है। सर एफआर एसएफएम सर। ओके, मतलब एफआर में वन स्ट्रॉन्ग रीजन है इसकी शुरू का 1 दिन वाला लॉजिक नहीं है, आपके पास ज्यादा टाइम है। एंड देन सेकंड, अदरवाइज यू आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मतलब मुझे एक दूसरा सवाल तुमसे पूछना है, तुमको क्या लगता है कौन से पेपर आजकल टफ नहीं आते, इफ आई रादर पुट इट लाइक दैट? सर एफआर एंड एसएफएम। एफआर एफआर एंड एसएफएम। एफआर तो फॉर श्योर, हाँ। ओके, अब एफआर या तो सर पेपर टफ नहीं आ रहे, या जो हमारे सर है जिनने हमें पढ़ाया उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि हमें टफ नहीं लग रहे, वो डिबेटेबल है। रुक जा यार। सर भक्त आ गया आपका आज यहाँ पे। नहीं, अब नहीं सहन कर पा रहा हूँ मैं। चलो जी, बढ़िया है। लॉ किसने बोला यार? सर लॉ मैंने बोला है सर, मुझे बड़ा लॉ अच्छा लगता था, मतलब कॉन्फिडेंस लगता था कि लॉ में चाहे थोड़ा इस बार डिफिकल्ट भी था पेपर, एक लॉ में कॉन्फिडेंस रहता था, और इलेक्टिव भी मेरे पास इक्वल होता तो 3 चैप्टर्स तो सेम ही थे उसमें, तो लॉ में कॉन्फिडेंस शुरू से रहता था। इलेक्टिव कितने लोगों ने इकोनॉमिक लॉज के अलावा लिया था? कोई भी नहीं होगा सर शायद। मैंने 2, 3। ओके, 10 में से 3 यथार्थ, तुमने क्या लिया था? तो जीएफआरएस। हाँ, इससे तो बात की है मैंने। यश? रिस्क मैनेजमेंट। ओके, अरे एंड किसने लिया था? गौरव? सर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, क्यों रिस्क मैनेजमेंट क्यों लिया? टाइम कम पड़ता है सर उसमें। हाँ, वन ऑफ द रीजन वो भी था कि नंबर ऑफ पेजेस कम थे तो जल्दी जल्दी रीडिंग होगा शायद, बट पेपर्स ऐसे टफ आ रहे थे, थोड़ा इंटरेस्ट भी था, लॉ मुझे वापस पढ़ना नहीं था इसीलिए। सर मुझे लगा कि पहले सबसे मैंने बुक चेक की थी, उसकी बुक सबसे अपनी थी। सेकंड ये थी कि मेरी मैथ अच्छी थी, तो मुझे डर नहीं लग रहा था कि न्यूमेरिकल आ गया तो कर दूंगा, तो यही था। बाकी ओपन बुक था, कुछ फॉर्मूले नहीं रटने, आपके पास कंटेंट है, आप बस देखो एंड ये रीजन था। ओके, सर मैंने दोनों इलेक्टिव कर रखे, मैंने आरएम करा था जुलाई में, फिर मैंने इक्वल लिया दिसंबर में। अच्छा, वो इनिशियली इससे ही लिया आरएम क्योंकि कम पेजेस कम थे सर, बट बाद में समझ में आया कि वो तो नाम के हैं, मतलब पूरी बुक ही चैप्टर है, उसके अंदर मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है। बट सर इस पर इक्वल ले लिया सर। बाय द वे ये डिसीजन ऐसा था, इसने मेरा लास्ट मोमेंट में दिमाग खराब किया था, मैं सोचा था कि मैं स्विच करूंगा जीएफआरएस या इकोनॉमिक लॉज पे, तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियो बाद में देखे तो ऐसा होता है, तो बेटर है आप अपने डिसीजन में स्टिकी रहो, आपने सही डिसीजन लिया होगा जो लिया होगा। ओके, ठीक है। चलो रिजल्ट अपने इसके सबसे ज्यादा कंफर्टेबल में 3 वोट मिले एसएफएम को, 2 एफआर को, एंड देन लॉ, एससीएमपी और आईडीटी। कूल। नेक्स्ट, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं? एक दिन में एक या एक से ज्यादा? एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी, या 3? एक ही सब्जेक्ट। One in a day, is it? मेरा से 3 सब्जेक्ट्स था। इसका? खैर, ओके। मेरा भी 3 था क्योंकि ऑडिट वाज रनिंग पैरेलल एंड देन 1 theory 1 practical. Exactly same. Okay, so you had 3 subjects at a time, is it? Yeah.
Okay, so answers are like 6 said 1 in a day, which is including me. मतलब मैं भी जब पढ़ता तो एक दिन में एक ही होता था. 2 यानी एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी वाला. 3 सब्जेक्ट मैनेज होते हैं. सर 2 ही नहीं हो हाँ सर, पाते. एक्चुअली ऑडिट मॉर्निंग को में मैंने नहीं गिना तो मैंने ऑप्शन 2 ही चूज किया है. मतलब ऑडिट वाज पैरेलल फॉर मी. अच्छा, it was always there. या अच्छा. क्योंकि 3 में तो फिर ऐसा होता है ना, आप टाइम कैसे देते हो मतलब? सर 2 सर ही वो नहीं हो मॉर्निंग में पाते. उठते से ही 2 घंटा पहले ऑडिट पूरा कर लिया एंड देन यू आर रेस्ट अश्योर्ड कि एक सब्जेक्ट तो ऐसा है कि कंफर्टेबली हो जाएगा एंड देन जो बचा हुआ टाइम है इसमें यू आर डूइंग प्रैक्टिकल एंड थ्योरी साइमल्टेनियसली सब साथ-साथ में, तो हो जाता था फिर. ठीक है, मतलब दैट्स स्ट्रेंज एक्चुअली, बट हाँ, दैट्स अ न्यूज़. इस पर्टिकुलर एग्जाम में तुम एग्जाम लेके आए तो कौन से सब्जेक्ट में तुमको सबसे ज्यादा डर था कि इसमें कुछ लफड़ा हो सकता है? और लीस्ट कॉन्फिडेंट, दिस वुड डेफिनेटली बी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. So before exam, DT होने वाला है सर. DT. कॉस्टिंग. मेरा तो Costing. DT था. आफ्टर सबका DT होने वाला है. आने की ना एग्जाम से निकले और उसके बाद ओके. एंड मैंने इसमें एफआर और एसएफएम ऑप्शन में दिए नहीं है क्योंकि पेपर ऐसे थे नहीं ऐसे इस बार के. तो ऑडिट, लॉ, एससीएमपी, डीटी और आईडीटी है. ओ माय गॉड, सबसे ज्यादा डीटी और एससीएमपी है, उसके बाद लॉ है. आईडीटी सिंपल होता है, लगता नहीं है डर आप लोगों को. ऑडिट इस बार आई थिंक पेपर रीजनेबली साथ देगा. एंड ओके, डीटी इस बार टफ आया था. सर काफी लेंथी आया था सर. नहीं था, लेंथी काफी ज्यादा था सर. एंड जितने भी सारे नए सेक्शन से लाइक जो नए इंट्रोड्यूस हुए थे, हाँ, सबसे क्वेश्चंस. सारे टारगेट इवन सर कोई चीज अगर सेम भी आई है पास एग्जाम से तो उसके नंबर कम कर दिए उन्होंने, या फिर मैं छोटा मोटा ट्विस्ट कर दिया, ऐसा ट्विस्ट जो आपने कभी देखा ही नहीं है. तो पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छा हो गया. एंड में आपको मालूम पड़ा है कि क्वेश्चन ही कुछ और है. अच्छा, मतलब पेपर पैटर्न चेंज हुआ इस बार ऐसा, या सब पैटर्न चेंज नहीं, बट लेंथी क्वेश्चन तो काफी कम मार्क्स में दे दिया. अभी एक एमटीवी में क्वेश्चन है 8 नंबर का, तो सेम क्वेश्चन उन्होंने 4 नंबर में दे दिया सर. जस्ट हाफ. ओके. और क्वेश्चंस नए आने लग गए. क्वेश्चंस नए नहीं है सर, सिमिलर लगेंगे नए आपको. sections. मतलब मैंने जब स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर रीड किया था तो मुझे लगा पूरा पेपर इजी है. मैंने स्टार्टिंग ही एग्जिट टैक्स से किया, सब उससे ही करते हैं शायद, वो काफी इजी लगता है वो सबको एग्जिट टैक्स. उससे शुरू किया, उसके एकदम लास्ट में आगे मालूम पड़ा कि एकदम नया पॉइंट है जो कभी देखा ही नहीं है. तो वो लैंड वाला वो होगा. लैंड वाला था. लाइबिलिटीज पूरी चेंज कर दी थी, असेट काफी इजी थे उसके. लाइबिलिटीज में काफी नई चीजें डाल दी, तो सब ऐसे हिल गए होंगे. मैं तो काफी हिल गया था, ये क्या कर दिया. फर्स्ट क्वेश्चन में इतना बड़ा ट्विस्ट. तो पूरा पेपर ऐसा अंडर कॉन्फिडेंटली निकला, और ऊपर से लेंथी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा लेंथी था सर. एक्चुअली सर प्रॉब्लम लॉ में भी थी इस बार. जो पिछली अटेम्प्ट्स में 4-4 मार्क के पूछते थे, उन्हीं को इन्होंने 2-2 मार्क के में सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन के अंदर फिर सब क्वेश्चन. तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था खत्म कहाँ हो रहा है, कहाँ चालू हो मतलब सर हाँ, लॉ में तो 14 नंबर के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे. रहा है. हाँ. अच्छा, इस बार पेपर लॉ का थोड़ा ऐसा आया था. काफी लेंथी था लॉ का, काफी लेंथी था लॉ का. तो हमारी एंड डिस्क्रिप्टिव के साथ इन लोगों ने एमसीक्यू भी वैसा ही कर दिया था. हमें था कि ठीक है डिस्क्रिप्टिव ऐसा है तो एमसीक्यू में ये लोग थोड़ा सा लीवे दे देंगे, बट एमसीक्यू उसका भी बड़ा, लाइक जहाँ पे जो 2-2 पेज के केस सिनेरियोस जो बड़े-बड़े होते हैं उसमें यूजुअली 2 या 3 क्वेश्चंस अटैच्ड होते हैं. लॉ में आप 2 पेज पढ़ो एंड यू कैन आंसर ओनली 1 क्वेश्चन, वैसा हो गया था. ठीक है, चलो. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे फॉर यू गाइस, would you recommend CA to your juniors? Yes, definitely. Very good. डेफिनेटली सर. Okay.